Now, shifting our focus to another important development that we are tracking very particularly at this point of time, as the air quality of the national capital continues to deteriorate, falling further into the poor category. It is days after the GRAP 1 or by the CAQM has been implemented in the Delhi NCR region. The Commission for Air Quality Management had also then activated the GRAP 1 plan across the NCR. The city's daily average air quality has reached 234 as per the latest bulletin from the CPCB, that's the Central Pollution Control Board. Yesterday, the Supreme Court had rebuked the Haryana and the Punjab government for not taking action and complying with the directions of the air quality management and rapped over the stubble burning issue. In fact, the Supreme Court also issued directions into the CAQM, which failed to comply with the directions to curb the air pollution menace in the national capital. And viewers, it is in fact yet another issue of this year, which continues to mount every year on the pollution menace, as the national capital chokes. The pollution levels gave a huge problem living for the citizens of Delhi. All right, joining me are my colleagues from different parts of the Delhi NCR who are bringing us live reports and in fact the action from the ground as far as there is choking that's happening in the national capital, the AQI deteriorating further, but the government and authorities, viewers, continue to keep a blind eye. Now, let me first go across to my colleague Arzu Seth. Arzu, who is joining me live from India Gate. Very good morning to you. How does the morning at the India Gate look like as the air quality deteriorates and the AQI, which is maintaining to be breaching over the 200 mark? The GRAP 1 is in force. There are mitigation efforts on the ground, but is there any impact? Well, Simran rightly said, the Delhi air has been choked, and right now I am at the India Gate and would like to show you the visuals from this particular place. You can see a thick layer of smog have engulfed the very national capital. People in fact have started facing a lot of problem. They have started feeling the uneasiness in the weather, and following this there has been a meeting that was held by the Delhi Chief Minister, and after that the GRAP 1 stage has also been implemented in the national capital. Also, it has been said that 99 teams will inspect the construction site for the dust control. The Public Welfare Department will deploy around 200 anti-smog guns to fight with the pollution in the national capital. You can see the visuals. Nothing can be seen clearly because there has been a thick layer of smog which can clearly be seen at the India Gate, and this is the time when the national capital is approaching to the winter season. And when we see in the winter season there will be a smog and there will be a fog, and then there will be a pollution, and their immersion will lead to a lot of problems to the people here at the India Gate. If you can see, in fact, Rashtrapati Bhavan is also can be clearly seen. So there has been a lot of pollution here in the national capital. Also, as far as the AQI is concerned, today in the national capital, the AQI is 272. Overall AQI is 272, which comes under the poor category. And also, if I can show my viewers that the AQI at some places is in the red zone, means at the Dwarka you can see the AQI is 340, and also at Mudka it's 371. There are several places like Pratapgarh where the AQI is 330, Punjabi Bagh it's 305. So there are several places where the AQI is in the very poor category. So the situation is very alarming for the people in the national capital, and it's a time for the government to wake up and take a long-term serious action regarding to battle with the pollution in the national capital. All right, yes, Simran. Arzu, there we in fact saw the visuals of how the situation is at India Gate. At what I can see, viewers, there is in fact the onset of the winter season, and as the winter season commences, the issue of stubble burning, the issue of the pollution levels spiking
only continues to bring bad news for the people of Delhi. But let me also get across to my other colleague Mahindra Mahi, who is joining me from Noida. Mahindra, very good morning to you. And what we can understand at this point of time, that in the NCR region, the issue of choking the citizens of Delhi continues to be the top story for the winter season. But what is the situation in Noida? The AQI in fact is depleting from the AQI in fact is spiking from the Delhi NCR region. What is the situation that presently is in Noida? बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा की आबो हवा सुबह से ही बेहद खराब नजर आ रही है। आज सुबह तकरीबन 7 बजे जब उनके लोग अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा किस तरीके से सड़कों पर धुंध छाई है। जो लोग पार्कों में एक्सरसाइज करने जाते थे या योगा करने जाते थे, उनकी आंखों में जलन हो रहा था और खांसी की शिकायत मिल रही थी। तो ऐसे में लगातार जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की AQI लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह भी नोएडा के तमाम इलाकों में अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो वो 300 के आसपास दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में आती है। सड़कों पे जो बच्चे बाहर जा रहे थे उनको खांसी की समस्या आ रही थी। ऐसे में अब बहुत जरूरी है कि अब अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या घर में आपका कोई जो बुजुर्ग है, जो गर्भवती महिला है या ऐसे बच्चे हैं, तो उनको मास्क जरूर लगा के भेजें। क्योंकि अब देखिए वो दौर शुरू हो गया कि हर साल हम देखते हैं किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जून जुलाई सितंबर के बाद जो है बड़ा खराब होता जाता है। फिलहाल नोएडा ग्रेटर नोएडा में बात करें तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। प्राधिकरण, चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, हर कोई अपना काम कर रहा है, मगर उस एक्शन प्लान में वो काम नहीं दिख रहा धरातल पे। आज भी अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाएंगे या ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन जाएंगे तो वहां आपको कंस्ट्रक्शन चलता हुआ दिख जाएगा। और जहां खुलेआम जो मटेरियल होता है, जो डस्ट मटेरियल होता है, जो सीमेंट होते हैं, जो तमाम रो मटेरियल होता है, खुले में रखे जाएंगे। जबकि पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू है, उसके बावजूद भी जो तमाम पाबंदियां हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। कल ही पोल्यूशन कंट्रोल विभाग ने तकरीबन 3.5 लाख का जुर्माना लगाया है अलग अलग सेक्टरों में, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि कैसे लोग खुले में झाड़ू लगा रहे हैं, खुले में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुले में डस्ट मटेरियल रख रहे हैं, जिसके कारण जो मटेरियल होता है वो धूल में मिल जाता है और कहीं ना कहीं पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मगर अभी भी अगर आप सड़कों पे निकलेंगे और देखेंगे तो जो धुंध है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही, खासकर जो वो लोग जिनको अस्थमा की दिक्कत है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है या जिनको पहले से ही हार्ट की कोई बीमारी है, उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए आने वाले फेस्टिवल में और ज्यादा पॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि हर साल का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेंड हो चुका है कि अक्टूबर नवंबर में पूरे दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर में तब्दील हो जाता है। तमाम जो गवर्नमेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तीनों ही आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाती है कि अलग अलग राज्यों में जो पराली जलाई जाती है उसके कारण हमारे राज्य की पॉल्यूशन बढ़ती है। ऐसे में all right, Mahindra, as you are saying that in fact it is the neighboring states in the NCR region which in fact give rise to the pollution levels due to the stubble burning. But let me also get the reports bringing from my other colleague in Ghaziabad. Anil Chaudhary joins me. Anil, very good morning to you. जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरफ दिल्ली की स्थिति है, दूसरी तरफ नोएडा की है, और अब हम गाजियाबाद पे आते हैं जहां निरंतर पोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता दिख रहा है। दिल्ली और नोएडा में पोल्यूशन का लेवल खराब होने से पहले, पर इससे भी ज्यादा जो आश्चर्य की बात है वो ये है कि क्या जो गाजियाबाद का प्राधिकरण है, जो अथॉरिटीज हैं, वो कोई एक्शन ले पा रही हैं? क्या पिछले 15 से 20 दिनों में जो स्थिति है वो इतनी खराब हुई है कि अभी तक भी कोई एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं समझी गई, जब एनसीआर का जो रीजन है वो हर साल इस समय बढ़ता और खराब होता दिखता ही है? देखिए, जो हालात दिल्ली के हैं तो गाजियाबाद भी अछूता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर पहुंचा है, जिसमें कि 288 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था बीते एक दिन पहले ही। और गाजियाबाद की बात करें तो 250 से पार था, तो तीसरे नंबर पर हापुड़ था। तो ये वो जिले थे उत्तर प्रदेश के जो काफी पोल्यूटेड जो है स्थान इनका पाया गया था। और ऐसे में ग्रैप 1 के जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं दिल्ली एनसीआर में।
पर उनका किस तरीके से पालन किया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और जो लोनी का इलाका है वहां पर फिलहाल की बात करें तो 250 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हालांकि संजय नगर की बात करें तो संजय नगर में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, वो 200 से घटकर जो है 180 पर दर्ज किया गया है। पर चिंता की बात यह है क्योंकि दिवाली नजदीक है और ऐसे में तमाम जो रोक है पटाखों पर लगाई जाती हैं, तो आतिशबाजी जरूर होती है, उसके रोक के बावजूद भी आतिशबाजी जरूर होती है और जो हालात हैं वो और बद से बदतर हो सकते हैं यदि अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे, क्योंकि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। क्योंकि ग्रैप के जब नियम लागू कर दिए जाते हैं तो ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों को उतरना पड़ता है और साथ ही मैं आपको बता दूं सड़कों पर छिड़काव करना बेहद अनिवार्य होता है, ये बात कही गई है ग्रैप के नियमों में। और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं उन पर भी ग्रीन कपड़ा लगाकर ही काम कर सकते हैं। पर जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा वो आप देखेंगे किस तरीके से ये पेड़ हैं जो रोड के किनारे पे हैं, किस तरीके से धूल जो है, बिल्कुल मैं कैमरामैन को दिखाए, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये धूल के कण हैं। यही हवा के जब हवा चलती है तो यही हमारे आसपास के वातावरण में मिलते हैं और बेहद घातक साबित होते हैं। इन्हीं के चलते जो है सांसों पर संकट आता है, जो आम जनता है वो पोल्यूशन की मार जो है दिल्ली एनसीआर में झेल रही है। जरूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की, अधिकारियों को सड़कों पर उतरकर काम करने की। यदि इसी तरीके की लापरवाही चलती रही तो आने वाले वक्त में फिर नियम और भी लागू करने होंगे, क्योंकि ग्रैप 1 अभी लागू हुआ है, जैसे ही 300 के पार पहुंचेगा तो 3 भी लागू करनी 2 भी लागू करना होगा स्टेज, फिर 3rd लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि बीते साल की बात करें तो काफी हालात जो है बदतर हुए थे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर गैस के चैम्बर में चेंज हो गया था। 400 के पार एयर क्वालिटी पहुंचना तो आप समझ सकते हैं लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिलहाल उसी तरीके की सिचुएशन एक बार फिर से क्रिएट हो रही है, एक बार फिर से लोगों का दम घुटने लगा है। लोगों की शिकायत आ रही है कि उनको आंखों में जलन होनी शुरू हो गई है और गले में खराश की भी समस्या उनके सामने आ रही है, क्योंकि हमने लगातार न्यूज एक्स ग्राउंड जीरो पर लोगों के व्यूज भी जानता है आखिरकार उनको समस्या किस तरीके की आई है। क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है तो लोगों को समस्याओं का अंबार उनके सामने आ गया है, आंखों में जलन, सांस की दिक्कत और गला खराब होना, अस्पतालों में काफी भीड़ पहुंचना, बच्चे ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ना और प्रेग्नेंट लेडीज जो है वो भी काफी बीमार हो रही हैं। और ऐसे में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके सामने भी समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया है, उनको सांस लेने में, ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है। इस तरीके की बातें सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, उनकी तरफ से कहा गया है यदि आप All right, Anil, thank you for giving us the ground reality that's happening in Ghaziabad. And as we can see very clearly how in fact the dust particles and the pollution levels after being spiked has created the kind of situation where troubles only seem to be mounting for the people in the Delhi NCR, and I'm afraid how in fact it is going to be another next 15 days which the Delhi is going to be choking once again this year. All right, viewers, that was all the news of the nation and the world. We'll continue to track all the developments very closely till then. Stay with us. कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना